morning, students. Myself, Ankur Badhwar, and this is part 3 of the weekly current affairs for RB and SEBI. It is the third week of April. The current affairs are covering from 12th of April to 18th of April. That particular week. Okay, so we will be starting with already two parts, part 1 and part 2. The video has been rolled out. It is there in the playlist. You can check it out if you haven't seen it. And this is the part 3. So let's start. We covered till subfolder number 1. As you are aware that I have divided the entire general awareness into 3 parts. One is the static banking awareness. Okay, banking awareness. Second one is the static general awareness, and third one is the current affairs. The current affairs I have further divided into 15 subfolders, and in the first 2 parts we have covered the first subfolder, that is banking awareness, economy and finance. It is the subfolder which has the majority of news nowadays, because due to COVID-19 the other events like sports and other activities are not taking place. And also this subfolder is very important for your phase 2 also, for SEBI grade A as well as for RB grade B as well as for NABARD also. So that was very important. And since there I have to explain a lot of things, there is lot of MCQs which can be formed from that subfolder, so it took 2 parts to cover that subfolder. But all the other subfolders, that is the rest of the 14 subfolders, we will be able to cover in this video. This is the part 3 of the third week of April current affairs for both phase 1 and phase 2 for all the regulatory bodies like RBI, SEBI, NABARD, and it will be also covering the all other banking and insurance exams. So let's start. Sports, no news relevant for your exam. The upcoming exams like RBI and SEBI, no news relevant in the entire week. So this subfolder is empty. Let's move to subfolder number 3, that is portal schemes and campaign. Now this item this news current affairs, there is a scheme which has been announced for the electronic. The total amount for that scheme is 48,000 crore, and it consists of 3 sub schemes, and the largest scheme is this one, production linked incentive scheme, which has a outlay of 41,000 crore, and it is for next 3 years. The basic aim of this scheme is to boost the mobile phone, the smartphone manufacturing in India. Okay, so that was notified also. It was in news for the past 2 weeks, and it was notified, and this scheme is likely to come in your exam, I suppose. In RBI and SEBI, this is very important. This scheme can come in RBI, it can come in phase 2 also, it can come in 4 to 6 marker also. So very important scheme, because it is in use too much. Now CII has made some recommendation how we can make this scheme more effective in the coming. So what question can come from this current affairs is that they can ask you the CIA headquarters. CIA full form, I hope you know what is the form of CIA. Please write in the live chat box or the comment section below. It is in the headquarters is in New Delhi, and it was set up in 1895. Yes, it was set up in 1895, much before India's independence. So please write in the live chat box what is the full form. Okay, so let's go ahead to the next current affairs. Yukti web portal by HRD Ministry has been launched to combat COVID, knowledge, technology and innovation. So such kind of portals can come in 1 marker in phase 1. So Yukti by HRD Ministry, that is the Human Resource Development Ministry. Okay, let's go ahead. I just want to know who is the current HRD minister. Please write in the live chat box or in the comment section below. Okay, so let's move to next current affairs. PM Garib Kalyan Yojana, the total sum is 1.7 lakh crore. This MCQ can be formed. Okay,
I will be telling you what all questions can be made for your upcoming exams like RBI and SEBI from these current affairs PDFs. Okay, and I also be making the quizzes for all the weeks. I will be rolling out because there have been a lot of requests from many of the students that please make the quiz video. So I will be doing that. But in this PDFs also, I am telling you in each current affairs that what kind of question can be formed in your coming exams like RB and SEBI. So let's go ahead. PM, you need to know what are the features of this scheme, what all is there. We have already covered in the previous week video. Please go through that in detail. It is covered in detail, like gas cylinders, pulses and all other things are given. मनरेगा में वेज इंक्रीज की गई है, EPFO को दिया गया, all these things are there. So this is a likely scheme which likely question can come from this scheme. PM Garib Kalyan Yojana, its outlay is 1.7 lakh crore. This can also come. What is the total outlay of PM Garib Kalyan Yojana? The options can be 2 lakh crore, 1.7 lakh crore, 1.5 lakh crores. Likewise, there will be 5 options and you have to mark the correct one. Now, center to hike MSP for minor forest produce. You know, the question which can come is what is full form of MFP? Okay, so it is minus forest produce. MSP, I hope you know, minimum spot price. It can also come, but it will be a very simple question if it comes. So MFP means minus forest produce. Now see the current affairs. In a bid to financial empower tribals during the COVID-19 crisis, the center is planning to increase the minimum spot price by 16 to 30%. Now it hasn't taken place, so this is not important for now. Okay, so these are the items which are planned to be included. Let it be included first, then we will see. Now the Ministry of Tribal Affairs, this is an important ministry for the tribal. You will see one agency, TriFed, which I will be discussing just a while from now. Now this scheme was rolled out in 2013-14 by the then Congress-led UPA government. इसमें क्या होता है दैट इफ़ द मार्केट प्राइस जो होता है, वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो मार्केट प्राइस होता है, वो किसी वजह से अगर एमएसपी से नीचे चला जाता है, दैन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी एजेंसीज दे प्रोक्योर द प्रोड्यूस एट एमएसपी, मिनिमम स्पॉट प्राइस पे वो उस प्रोड्यूस को खरीद लेती हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो. ओके, सो दिस इज द एजेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्राइफेड. ओके, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. इसके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है. हमने फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की वीडियो में इसके हेडक्वार्टर्स भी किए थे. इन द लाइव चैट राइट नाउ प्लीज टेल मी वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्राइफेड आर देयर, or write down in the comment section. Okay, let me see how much you remember. So let's move to next current affairs. Sovereign gold bond scheme 2021 launched by RBI. Now this is not a fresh scheme, but इसके जो ये ना ट्रांचेस में लॉन्च की जाती है. लाइक 6 मंथ्स के लिए शेड्यूल आ जाएगा, फिर या फिर 1 साल के शेड्यूल आ जाएगा. नाउ 6 मंथ का शेड्यूल ने दिया है अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 का. इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है. ये स्कीम कभी भी आपके एग्जाम में आ सकती है, कई एग्जाम से आ भी चुकी है. इसमें एश्योर्ड रिटर्न मिलता है 2.75%. सो वन क्वेश्चन जो इसके ऊपर बनता है दैट इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3%, 2%, 2.5%, 1%. सो द करेक्ट आंसर इज 2.5% द इंटरेस्ट विच द इन्वेस्टर गेट. फिर इसके ऊपर जो सेकंड एमसीक्यू बनता है इस स्कीम के ऊपर, वो बनता है कि इसमें मिनिमम कितना डिनोमिनेशन है जिसका आप जो बॉन्ड बाय कर सकते हो, दैट इज 1 ग्राम. ओके, बॉन्ड का टेन्योर क्या है जो नेक्स्ट एमसीक्यू बन सकता है, दैट इज 8 ईयर्स. ओके, विद एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5 ईयर्स टू बी एक्सरसाइज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट. सो ये 3-4 क्वेश्चन इस स्कीम के ऊपर बन सकते हैं. और इस स्कीम का एम भी पूछा सकता है. व्हाट इज द मेन एम ऑफ द स्कीम इज टू reduce the gold imports. Reduce the gold imports are the main aim of this scheme. So these were the questions. So let's go ahead. Yeah. Next kind of is government to push road employment and housing schemes to revive Bharat. You know that economy is going to be opened. Quite a few sectors are going to open from 20th of April, and this is for that only. And the rural development ministry has chalked out the plan and this one. So what is important, one of the current rural minister, that is Narendra Singh Tomar, and the target which has been set is 281 crore percentage on the Manrega.
So this target can come in your exam. The question can be target set on the manega is this one. So it is 281 crore person per days. And this housing for all scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, and these urban component also we have discussed in the schemes when we are doing ESA schemes, and I will cover in detail in the ESA schemes also when I will making the videos. I already covered in the offline classes of CL. Okay, so let's go ahead. This is also important scheme. We also discussed this scheme, National Rural Livelihood Mission. We have covered the scheme, but I will make a video in ESI also. I will cover it. So this is the end of subfolder number 3. Now we will move to subfolder number 4. Now before moving that, please be aware that these schemes are important because these schemes are regularly coming in the news nowadays due to coronavirus crisis. So this scheme is becomes very important for your ESI as well as for your phase 1. Okay, so let's go ahead. Appointments and committees, सब फोल्डर नंबर 4. नाउ बहुत ही कम हो रहा है अपॉइंटमेंट और कमिटीज़ क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन के अंदर है, बट स्टिल जो थोड़े बहुत है वी विल डू दैट. विरूपक्ष मिश्रा, he has taken the charge as the executive director of Union Bank of India after the amalgamation of Andhra and the Corporation Bank with the Union Bank. Now the most important is I don't, this is not so important Virupaksha Mishra, but can come. But the important thing is the Union Bank of India has merged with Andhra Bank, Union Bank, Corporation Bank, Andhra Bank have merged to form the Union Bank of India. So this is what is important. Okay, so which banks have merged? The question can be recently the merger of these banks have taken place. 5 options will be there and you have to mark it the correct one. And where are the headquarters of Union Bank of India? It is Mumbai. So this much only from the subfolder number 4. Okay, so let's move to subfolder number 5, meetings, summits and event. As you know that due to lockdown hardly any meeting are taking place, and if so some meetings are taking place, they are taking in the virtual platform like in video conferencing से ही मीटिंग हो रही है जो थोड़ी बहुत हो रही है. Okay, so let's see what can come. UNIDO and cuts to achieve 2030 sustainable development goals. Now UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, it is a UN organization, so its headquarters can be asked. First of all, that is one MCQ. Has signed an agreement with Consumer Unity Trust Society. This question can become recently. UNIDO has signed agreement which society or trust, that is cuts, that is the second MCQ. To support the ongoing to achieve the 2030 SDG. SDG के पे 3 बार क्वेश्चन आ चुका. आरबीआई गेट भी 2017 पे आया था, SDG पे 2018 पे आया था और 2019 पे भी आया था. ESI के अंदर 1 मार्कर हर बार आरबीआई ग्रेड बी में. सो यू शुड नो व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसके अंदर 17 गोल्स होते हैं और 169 टारगेट्स होते हैं और इसका जो टाइम पीरियड 2015 to 2030 is the time period for implementation of sustainable development goals. I hope you know it. Very important. Now मैंने कहा था इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं यूनिडो के, बिकॉज इट है UN एजेंसी. इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट Vienna, Austria. These kind of questions you have to remember. Like these kind of organizations when they are coming in the news, they become important. ऐसा नहीं है को आपको हर किसी के छोटे मोटे कुछ भी, like some students are giving me quiz questions and I must say they are wasting their time. Like out of 20 questions they are giving me 18 questions are non-relevant which they are memorizing. Now just imagine per day if they are memorizing those 20 questions, out of then 90% irrelevant, how much टाइम इट इज़ गोइंग टू वेस्ट, कितना टाइम अपना बर्बाद करेंगे. सो एनीवेज दिस कैन श्योरली कम. You must remember where are the headquarters of UNIDO, that is Vienna, Austria. It is the capital of Austria, not Australia, Austria. Now second फाइनेंस मिनिस्टर G20. अभी आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने किया था, पहली मीटिंग हुई थी जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्चुअल मीटिंग की थी. नाउ सऊदी अरेबिया इज थी होस्ट. नाउ अब सऊदी अरेबिया न्यूज़ में आ गया, इंडिया से रिलेटेड है, तो इसके हेडक्वार्टर्स कह रहा हूँ, इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है. द हेडक्वार्टर ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद. आई होप यू आर अवेयर. प्रेसिडेंसी पूछी जा सकती है कि रिसेंट प्रेसिडेंसी G20 की किसने होस्ट की थी, दैट सऊदी अरेबिया. सो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर कि G20 वर्चुअल मीटिंग का होस्ट कौन था.
फर्स्ट एमसीक्यू, फिर उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है, सेकंड एमसीक्यू। ओके, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर आरपी ग्रेड बी, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द फेज 1। 80 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन जो आते हैं वो यही से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू, दिस इज द एंड ऑफ सब फोल्डर नंबर 5। नथिंग मच देयर, सो वी विल गो टू सब फोल्डर नंबर 6 नाउ। इस पे काफी न्यूज है बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस देयर आर लॉट ऑफ इन्वेंशंस एंड ऑल टेकिंग प्लेस, एप्स बन रही है, वेबसाइट पोर्टल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें लाइक सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी सर इतनी सारी स्टेट इतनी सारी चीज़ें कर रही है, क्या सबको याद करना? नो, don't have to remember everything, only the important ones that I will be covering in this PDF, just do that much। और वैसे भी आप याद रखना RBI इज 6 months अवे एटलीस्ट, ठीक है। अभी जो एप्स और वो लॉन्च हो रही है कोविड-19 के लिए, अगर कोविड-19 तब तक ख़त्म हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट इसकी न्यूज़ आनी बंद हो जाती है, तो वो एप्स और वेबसाइट आने भी नहीं वाली। ओके, बिकॉज दीज आर 6-7 months ओल्ड करंट अफेयर्स, तब नहीं आएगी ये आपके एग्जाम में। बट अगर कोविड-19 क्लासेस तब तक कैरी ऑन होता है तब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो वी विल कवर ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, this is sufficient, need not to do thousands of things। Okay, do only the focus things, otherwise you will not get time to practice for quant, for reasoning, for English, for your ESI, फाइनेंस मैनेजमेंट, दीज आर, इसके जो इतने सारे स्टैटिक पोर्शंस हैं इनकी कब प्रैक्टिस करोगे? डू नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन करंट अफेयर्स, जितने मैं करा रहा हूँ दीज आर सफिशिएंट टू स्कोर 70+। ओके, 65+ तो आ ही जाने चाहिए, अगर आप सिंसियर हो, थोड़ा और एफर्ट लगाओगे तो 70+ भी आ जाएंगे। ओके, बाकी टाइम बाकी चीज़ों पे फोकस करो, दैट इज माई एडवाइस। सो लेट्स गो टू सब फोल्डर नंबर 6, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, डोंट वरी, SCQ इज अ क्लिक वे, इसकी फुल फॉर्म ये पूछी जा सकती है, ये काफ़ी न्यूज़ में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज़ होती है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को थ्रेट भी दे दिया था कि ये मेडिसिन दे दो नहीं तो मैं रिटेलिएट करूँगा। फिर अगले दिन हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स जो बैन लगाया था वो हटा दिया था। ओके, सो इंडियन ड्रग प्राइस रेगुलेटर, क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो इसके ऊपर आ सकता है मलेरिया को ट्रीट करने कौन सी ड्रग यूज की जाती है, 1 2 3 4 5, दैट इज फर्स्ट MCQ जो इस करंट अफेयर्स में से आ सकता है। सेकंड, हु इज द इंडियन ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर, दैट इज NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये आपका सेकंड MCQ बनता है इस करंट अफेयर्स में से। फिर इसका आ सकता है ये एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अंदर है, वो आपका थर्ड MCQ बनेगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं दी, मैं आपको बता चुका हूँ जब हम स्कीम्स का कर रहे थे कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर था। प्लीज़ राइट इन द लाइव चैट और इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर NPPA आता है। दिस विल बी द थर्ड MCQ विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स। नाउ ये अजिथ्रोमाइसिन एक वो है, एंटीबायोटिक है जो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। ओके, सो दिस कैन आल्सो कम। सो ये 4 MCQ बनते हैं आपके, ठीक है। दीज आर दी 4 MCQs विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस करंट अफेयर। सो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को करना है। आलतू फालतू कोई भी MCQs उठा के बस, अब MCQ भी आप कैसे उठाते हो इतने, मतलब एनीवेज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस नेक्स्ट करंट अफेयर्स, कोलैब कैट बाय नीति आयोग, NIC एंड अटल इनोवेशन। नाउ सी, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स बन रहे हैं बट इट इज फॉर्म बाय नीति आयोग, NIC एंड अटल इनोवेशन मिशन के अंदर बनाया गया है। सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। हर कोई छोटी, कोई यूनियन टेरिटरी, कोई छोटी मोटी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी बनाते जा रही है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बट कोई रिनाउंड कोई बड़ी चीज़ हो रहा है, कोई बड़ा स्कीम के अंदर इनोवेशन, तो यहाँ पे नीति आयोग, NIC और ये बना रहे हैं, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। इट इज़ फॉर 2D एंड 3D ड्राफ्टिंग टू, मतलब टू फाइट दिस वन कोविड-19। ओके, सो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कोलैब कैट किसने बनाया है, इन तीनों ने मिलकर बनाया है, एक MCQ वो बन गया, ठीक है। दूसरा, इसका एम क्या है, 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये सेकंड MCQ बन गया। इसका एम क्या है कोलैब कैट का? ओके, ATL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज अटल टिंकरिंग लैब्स, ये आपका थर्ड MCQ बनता है इसके ऊपर। फोर्थ MCQ जो बनता है कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। फिफ्थ का नीति आयोग का चेयरमैन कौन सा, ये हमने डिटेल में किया था ESA के अंदर जब मैंने नीति आयोग को डिस्कस किया था। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये ध्यान रखना है। और छठा MCQ बन सकता है ये वाला आपका कि नीति आयोग का CEO कौन सा है, दैट इज
सो आप देखोगे छोटे से करंट अफेयर्स में से 6 MCQs आपके बन सकते हैं. So that's how you have to do it. Okay, so let's move to next current affairs. Ayush Singh digital stethoscope by IIT Bombay. Now this is some good I will say invention. So likelihood can come in your exam. Just wait. Okay. Digital stethoscope question will be recently the Ayush Singh name. Digital stethoscope was invented by IIT Bombay, IIT Delhi, or IASC. Like this, they will give 5 options, and this they can ask. Okay, that only question can be found from this one. I don't think there is any possibility like they will ask BATIC, Biomedical Engineering Technology Incubation Center. Also, it is in under IIT Bombay only. So this is not important, but yes, they can are using critical study is delivered by which one of the following that question I mean IIT Bombay, IIT has or some 5 options. Let's move to next current affair. S400 very important. इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है आपका आरबीआई ग्रेड पे 2019 के अंदर एंड आई थिंक इट विल रिपीट अगेन. S400 की हम डिलीवरी रशिया ऑन ट्रैक, ये उसके एम्बेसडर ने बोला है. S400 है क्या चीज? दैट इज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम. कहाँ से दैट इज द फर्स्ट MCQ दैट कैन बी फॉर्म. कहाँ से हम प्रक्योर कर रहे हैं? रशिया से. दैट इज द सेकंड MCQ विच कैन बी फॉर्म. इंडिया हैज ऑर्डर 5 सेट्स ऑफ this one which is deal more than $5 billion. Okay, such kind of MCQs can be formed from this current affairs. Let's move to next current affairs. Modi prescribed आयुष ट्रेडिशनल वेज. अब आयुष मोदी जी ने प्रिस्क्राइब किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आयुष होता क्या है? दिस इज सेपरेट मिनिस्ट्री बाय द नेम ऑफ आयुष विच इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. तो क्वेश्चन क्या जो इसमें से बन सकता है, व्हाट इज यू इन आयुष or what is S in Ayush. Such kind of MCQs can be formed from this current affairs and you must know it. Very very important ministry. मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में और कमेंट सेक्शन में नीचे इसके मिनिस्टर का नाम बताओ. टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ आयुष करंटली. ओके, let's move to next current affair. Apple, Google clear the contact tracing tool. Now एक क्वेश्चन तो यही पे बन गया. Which of the following big multinational are planning to make a app for contact tracing tool? That is Apple and Google. पहला MCQ ये बन गया. Okay, let's see what all MCQ can be formed. Apple and Google address question about the incoming COVID. This that is the only MCQ which can be formed from this current affair. So let's move to next current affair. BCG वैक्सीन नॉट रिकमेंडेड फॉर वायरस. ये हम ऑलरेडी फर्स्ट वीक में कर चुके हैं. BCG काफ़ी न्यूज़ में था, उसमें बताया गया था कि जिन कंट्रीज़ में BCG इंजेक्शन लगाए जाते हैं उन कंट्रीज़ में कोविड-19 के केसेस या स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम है. उनमें से एक कंट्री है इंडिया, जापान, कोरिया. इन कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन दी जाती है. बट USA, इटली, फ्रांस, जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ये कोविड-19 का आई वुड से जो डैमेज हुआ है उन कंट्रीज़ में BCG की वैक्सीन नहीं दी जाती चिल्ड्रंस को. तो उस वजह से वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा है. बट WHO ने इसको डिनाई की है दैट वी आर नॉट रिकमेंडेड इट. BCG की फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है. इस में नहीं है, प्लीज़ टाइप इन दी लाइव चैट और दी कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ BCG और WHO के हेड क्वार्टर्स कहाँ आते हैं. सो आप देखोगे क्या MCQs बन सकते हैं. BCG के फुल फॉर्म 1, WHO के हेड क्वार्टर्स 2. दीज 2 क्वेश्चंस MCQs कैन कम इन योर एग्जाम in RBI grade B or SET or other exams from this current affairs. So let's go to next current affairs. MITI or MITI, whatever you say, this is a ministry. Ask Home Ministry to let rural service kiosks function. So let's see what is the current affair. Ministry of Electronics and IT MITI has requested the Home Ministry to allow digital kiosks to function. अब इसमें आप ध्यान रखना, there are 3,70,000 such digital kiosks which are on common service center. तो CSC की फुल फॉर्म पूछी सकती है फर्स्ट. दूसरा करंट अफेयर्स बनता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. CSC दैट इज माइटी. तीसरा करंट अफेयर बनता है आपका PM किसान स्कीम. इसके अंदर दे रखे तो PM किसान स्कीम क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो सब आपके 6 मार्कर में भी आ सकते हैं आपके ESA के अंदर. बट अभी के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके एलोकेशन कितना है इस बजट में. बजट
2020-21 के अंदर पीएम किसान स्कीम का कितना एलोकेशन है। इसका एलोकेशन 1 मार्कर में आपका ईएसआई के अंदर या फेज 1 के अंदर आ सकता है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, अभी इसका जो पीएम गरीब कल्याण योजना जो फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाली अभी रोल आउट किया, उसके अंदर भी इसमें सपोर्ट दी गई है फार्मर्स को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर माइटी का कौन है? रविशंकर प्रसाद। सो दिस इज द फोर्थ करंट अफेयर्स और फिफ्थ करंट अफेयर्स विच कैन कम। ओके, सो यू शुड नो। और भारत नेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, दैट कैन बी द फिफ्थ एमसीक्यू। इसके फीचर्स क्या है, वो सब क्या है, कितने विलेजेस कनेक्ट किए जाएंगे, सारे पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे इसका एलोकेशन भी आ सकता है। मैंने एलोकेशन भी आपको बजट में कराया था इसका, भारत नेट स्कीम का। मुझे इसका एलोकेशन भी इसके अंदर मुझे बताओ कि क्या एलोकेशन है भारत नेट स्कीम का। सो ये 5 एमसीक्यूज आपके इस करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। COVID Gyan, launched by TIFR, IASC, and TMC. Now, these are prominent research institutions: Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science, which is in Bengaluru, and Tata Memorial Center. It is in TIFR only. अब एक क्वेश्चन तो बन गया कि इनके ये कहाँ पे है, where they are situated, TIFR and TMC, because they are prominent institutions विच कैन कम, दैट इज इन मुंबई। पहला क्वेश्चन IISc बेंगलोर कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। और कोविड ज्ञान किसने लॉन्च किया है, दिस। सो ये आपका तीसरा MCQ बन सकता है। सो रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन कैन कम। एग्रीमेंट ऑफ मिसाइल्स विद USA। अब हुआ क्या था, जिस दिन हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन दी थी, अगले दिन USA गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट को हाथ like they approved the agreement. In that, United States has approved to sell Harpoon air-launched anti-ship missiles and Mark 14 lightweight torpedoes. तो ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आपके आरबी ग्रेड भी फेज 1 मारे, 2018 का पेपर उठा लो, 19 का उठा लो, 17 का उठा लो, एक ना एक क्वेश्चन मिसाइल से उसके ऊपर आ रहा है। वो उसमें क्या पूछते हैं, दे आस्क यू वेयर लाइक इसका पर्पस क्या है, ये किसे एंटी मिसाइल है या ये हेलीकॉप्टर है या एयरशिप है, क्या चीज़ है। एक क्वेश्चन तो इस पर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक फ्रॉम विच कंट्री वी हैव इंपोर्टेड, USA, रशिया, चाइना, कहाँ से इंपोर्ट किया है, किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम। नाउ हियर इफ यू विल सी हार्पून इज अ एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल। पहला तो क्वेश्चन MCQ ये बन गया, फर्स्ट MCQ इज द सेकंड। what is Mark 14? It is a lightweight torpedo. Second MCQ is this. Okay, worth 155 million to India. This is not so important. Okay, Harpoon system will be integrated with P-81 anti-submarine warfare aircraft. So third MCQ यहाँ से बनता है. This is the third MCQ which can be formed. Where is P-81? P-81 is a anti-submarine warfare aircraft. So क्वेश्चन जो आएगी आपके the type of MCQ that will come, which will be like Harpoon missile recently seen in the news is first option will be air launched anti-ship missile or land launched anti-ship missile, or it will be like it's anti-tank missile, or समवेयर दो तीन ऑप्शंस और बना देगा और आपका एक MCQ बन जाएगा। सो सच काइंड ऑफ MCQs कम्स इन आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए में भी ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ द डिफेंस एंड साइंस एंड टेक न्यूज़ विच आर इन न्यूज़। तो ये दो तीन MCQs आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड MC with the next current affairs. An integrated geospatial platform by DST and GOI. Now, अब सहयोग is the name क्यों दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी GOI दीज आर प्रोमिनेंट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो इसको बना रहा है। सो दैट पोर्टल बिकम्स इम्पोर्टेंट। वैसे नहीं है हर चीज़ ही लाइक important है, only the important things you have to remember. Okay, so GOI and Department of Science, अब क्वेश्चन आएगा recently a platform geospatial platform सहयोग has been formed by which one, the question में GOI and 1 2 3 4 5 DST और some other departments के नाम दिए होंगे, वो आपको मैनेज कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज द सेकंड MCQ which can come. Okay, so this kind of question can come. And what is the aim of this portal? It's a geospatial platform. क्या करेगा ये, वो सब इसमें दे रखा है उसके एम।
सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ये 3 MCQs इस करंट अफेयर्स में से आपके बन सकते हैं फॉर आरबी ग्रेड बी NCB and other exams. So let's go to next. So this is the end of 6 subfolders. 6 subfolder was defense and science and technology. Now we will move to 7th subfolder, that is the reports and indices. These are very important for your ESIX component, and that is ESI is forming important role in all the regulatory bodies like RBI, SEBI and NABARD. Okay, so let's see what is the report. Intended to grow by 1.5 to 2.8% in fiscal year 21. That is what World Bank is saying. Fiscal year 21 मतलब 2021 से लेके 2020 से लेके 2021. ओके, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल से और 2021 के 31 मार्च तक. इसमें हम सिर्फ 1.5 से 2.8% ग्रो करेंगे. आपको याद होगा इससे पहले पिछली वीडियो में हमने किया था, IMF ने कहा था हम 1.9% ग्रो करेंगे. ओके, सो सब अपने और बाकी आपका हो गया सब. बहुत सारी एजेंसी ला रही है, SBI अपना फोकस या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इतनी है, मूडी पूडी, वो सबको याद नहीं करना वो कितना एस्टिमेट कर रही है. ओके, ओनली द प्रोमिनेंट वर्ल्ड बैंक, IMF. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ निकालते, नीति आयोग कुछ निकालता, वो इंपॉर्टेंट है. सब कुछ करने बैठोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा और दैट विल बी रीजन फॉर योर फेलियर. Okay, India to grow at 1.5 to 2.8% in fiscal year 21. The World Bank South Asia Economic Focus. This is the report. South Asia's economic focus released on Sunday. / India growth rate between 1.8 to 2.8 from the. अब इस पे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे. First question, the recent South Asia Economic Focus Report is released by World Bank, IMF, ADP, AIIB या नीति आयोग. ऐसे ऐसे करके 5 ऑप्शन बन जाएंगे. सो दैट विल बी द फर्स्ट करंट अफेयर्स. फर्स्ट MCQ. दूसरा MCQ जो फॉर्म हो सकता है, इन द रिसेंटली रिसीव साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस न्यूज रिपोर्ट, what is the expected India's GDP growth? That is 1.5 to 2.8%. क्वेश्चन ऑप्शन 2 बन जाएगा, 2 to 3%. इस तरह से 5 ऑप्शन बन जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो 2 MCQs तो ये हो गए. और अगर पूरे साउथ एशियन रीजन की बात की जाएगी, सो दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 1.8 to 2.8%. इसके चांसेस बहुत कम है पूछे जाने के. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स क्वेश्चन कैन बी. अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता स्लो डाउन में थी ऑलरेडी, वी वर परफॉर्मिंग वेरी बैड. द ग्रोथ रेट हमारा 8% से अराउंड 4% के आसपास पहले ही आ गया था. नाउ धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट दिखने लगी थी, ग्रीन शूट शो हो रहे थे, बट अभी कोरोना वायरस आ गया. तो पहले जो 8% से 4 to 4.5% हम आए, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती, हमारे गलत डिसीजन थे, गलत इकोनॉमिक डिसीजन थे. अब जो ये क्राइसिस आ गया है, सो द कंडीशन इज वेरी बैड. You must have said other agencies including Moody and Pudi, जो भी है, Goldman Sachs have cut Indian growth forecast. वो तो करेगी यार. अब उसने 1.6% बोला है, या इसने ये मोदी ने 2.5 3.5 बोला. ये आपको नहीं याद रखने, ऐसी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी. हाँ, एक चीज़ मेरे ध्यान मान लो, अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है और सितंबर में अगर ये मोडी पूडी और ये गोल्डमैन सैच अपनी कोई एस्टिमेट निकालते हैं, तो वो आपको करना है. बट अभी आप देखोगे 6 महीने हैं अभी कम से कम RBI ग्रेड पेपर में. सेबी में भी 3 महीने हैं कम से कम, और ये हर 1 महीने 2 महीने में, क्योंकि रिवाइज होते ही रहेंगे. अब सेबी में भी मुझे डाउट है कि 4 जुलाई को होगा एग्ज़ाम. लेट्स सी इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 4 जुलाई. बट श्योरली RBI में तो ये मूडी पूडी जो भी है उनके फोकस नहीं पूछे जाएंगे. क्वेश्चन क्या बनता है, 3 क्वेश्चन तो अभी हमने कर लिए थे MCQ जो बन सकते हैं. क्वेश्चन बनता है कि इनके हेडक्वार्टर्स का है, मोदी के कहा है, गोल्डमैन सैच के कहा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर के कहा है. वो सब हेडक्वार्टर्स आई थिंक मैंने पीछे ये भी हो गए. लेट्स सी, गोल्डमैन सैच के न्यूयॉर्क USA, मूडी के भी न्यूयॉर्क में है, स्टैंडर्ड पुअर के भी न्यूयॉर्क में है, और ADP एशियन डेवलपमेंट बैंक के मनीला फिलीपींस के. नाउ न्यूयॉर्क इज द मोस्ट अफेक्टेड सिटी ऑफ कोविड-19. और आप देखोगे ज़्यादातर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही आपको मिलेंगे. वी हैव कवर्ड इन द बैंकिंग अवेयरनेस क्लास, इन द ऑफलाइन क्लास इन CL में जो मैंने ली थी, वहाँ पे मैंने कवर किए थे. एनीवेज मैं इनकी वीडियोस बनाऊंगा, आपके स्टैटिक वीडियोस बनाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसमें मैं कवर करूँगा. फॉर इंडिया एक्चुअली कवर करनी है वीडियोस में, जल्दी बनानी है, बट अकेले ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, सो इट इज़ टेकिंग बिट ऑफ टाइम.
बट डोंट वरी, इन नेक्स्ट अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक मैं आपको वीडियोस में बना दूंगा। ओके, मई तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये ऐसे कि भी मुझे स्टार्ट करनी है, डेली एक एक घंटे की एक वीडियो का प्लान है मेरा बनाने का, शोरली मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे में मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके लिए लेके आया करूँगा। पहले मैं सोच रहा था डेली वीडियोस लाऊंगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा करंट अफेयर्स में, फिर ई एस आई ने कवर कर पाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा ई एस आई मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे में आपकी करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस बनाऊंगा। हाँ, पीडीएफ मैं डेली करूँगा, कई बार 2-3 दिन इकट्ठे हो जाते हैं, मैं कई जगह बिजी हो जाता हूँ, बट स्टिल आई मेकअप उसकी पीडीएफ मैं आपको वीकली तो देख ही रहा हूँ, और डेली भी रेगुलरली आए मैं आप उसका पूरी कोशिश करूँ। सो लेट्स गो टू फॉर इंडिया पॉवर्टी रेट मेजर बाय, ये याद रखना है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मेजर की जाती है $1.90 से। अब इसमें देखो न्यूज़ क्या है, ध्यान से देखना। फिजिकल ईयर 15 में 13.5% हो गई थी हमारी पॉवर्टी रेट एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। पहले फिजिकल ईयर 2012 में ये 21.6 थी, डिक्रीज हो गई थी, बट उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी इंप्रूवमेंट हो रही थी जीडीपी वो कम होने लग गई, स्लो डाउन आ गया, गलत इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हमने, लाइक डीमोनेटाइजेशन, ये सब चीज़ें। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारी जीडीपी जो 8% के आसपास थी वो 4.54% के आसपास आ गई, और धीरे धीरे यहीं पे वो चीज़ ही बोल रहे हैं कि जो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे थे रिडक्शन पॉवर्टी में वो कम होने लगा। तो नाउ अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमें जो लग रहा है जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9% तक पहुंच जाएगा। अब याद रखना, बजट 2020 में हमने ये पूरा डिस्कस किया था कि टारगेट क्या है। आई होप यू हैव डन दैट बजट वेल। मुझे लाइव चैट बॉक्स में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट बताओ, जो बजट एस्टिमेट है, कितना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है। लेट मी सी हाउ मच यू नो। I know it, I can tell you, but I want you to know. I have covered this in the ऑफलाइन क्लासेस, स्पेशली उन स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ चुके हैं ये क्लासेस, उनको तो पता ही होना चाहिए। प्लीज राइट इट। ओके, फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्टेड टू वाइडन टू 9% ग्रोथ विल रिबाउंड, ऑल दिस वी हैव कवर्ड। अब ये नहीं याद रखना कि ये मोदी पूदी ने क्या फोरकास्ट किया। ओके, डोंट डू इट। हाँ, अगर आपके आरबीआई से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, या मान लो आरबीआई आपका अक्टूबर में सितंबर में कोई फोरकास्ट होता है, देन यू हैव टू डू इट। बट 6 महीने पहले वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, नो। हाँ, बट 6 महीने पहले जो इंपॉर्टेंट बॉडीज का फोरकास्ट कर रहे हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वो करना है आपको। ओके, ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब एनालिसिस देखोगे, आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे लास्ट 4 ईयर्स का। उसकी वीडियोस में बनाता जा रहा हूँ, 4 स्ट्रैटेजी वीडियोस में बना चुका हूँ, 5वीं भी मैं जल्दी बनाऊंगा। ओके, ये हम कर चुके हैं। सो इस आप देखोगे इस करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मैं सही कहूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज इसी में से ही बन सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू द एमसीक्यूज। IMF स्लैश F21 growth rate forecast to 1.9%. Okay, and it is saying it will be the worst recession since Great Depression. हो सकता है उसके बाद सबसे वर्स्ट डिप्रेशन होने वाला है, और अगर ये लंबा 1 साल तक चल गया तो उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। विशिंग वर्ल्ड आउटलुक बाय, तो एक क्वेश्चन तो बन गया कि आपका ये जो रिपोर्ट है उसमें क्या प्रोजेक्शन है, दैट इज़ 1.9% इंडिया का। ओके, दूसरा आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स का है, आई होप यू नो इट। तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दिस इज थर्ड एमसीक्यू। ओके, और द फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया इज सीन रिकवरिंग। अब नेक्स्ट ईयर में क्या फोरकास्ट किया है, दिस इज द फोर्थ एमसीक्यू विच कैन बी फॉर्म। ओके, सीज इंडिया F20 ग्रोथ, F20 में 4.2% है, दिस इज द फिफ्थ करंट अफेयर्स। ओके, ये कौन से फिजिकल ईयर की बात कर रहा है, फिजिकल ईयर 20 की बात कर रहा है, दैट इज जो अभी आपका ख़त्म हुआ है 31 मार्च को, 31 मार्च 2020 को जो ख़त्म हुआ है, उसकी बात कर रहा है। ओके, और फिजिकल ईयर 21 जो आपका ये जो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, और ये जो 7.4% है फिजिकल ईयर 22 की बात कर रहा है। ओके, सच थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो इस पर भी आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज आज भी आपका इसमें से बना सकता है कभी भी। गीता गोपीनाथ इज द करंट आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो इस द करंट चीफ इकोनॉमिस्ट एट आईएमएफ, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे देगा, 5 नेम्स दे देगा, एंड वी हैव टू
मार्क द करेक्ट थिंग। सो आप देखोगे 6 MCQs आराम से इस करंट अफेयर्स में से आपके RBI ग्रेड बी और CB ग्रेड ए के लिए बन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक्स इंडियस ग्रोथ रेट, ये रिपीट कर दिया क्या? सॉरी, आई हैव रिपीटेड दिस, sorry for that, same we have already covered it. So this is the end of subfolder number 7. Okay, reports and indices. Now we move to subfolder number 8, environment. No news which was found relevant for your exam, so will not be there. Next is the awards. No news, no awards ceremony is taking place. Important days पे मुझे कोई नहीं मिला जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। इंटरनेशनल में भी मुझे कोई, हाँ इंटरनेशनल में एक ही न्यूज़ आइटम था, ट्रम्प फिजिस WHO फंडिंग। WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, विच कंट्री हैज सेंड फिजिस फंडिंग टू WHO, दैट इज द सेकंड MCQ। थर्ड MCQ बन सकता है, हु इज द लार्जेस्ट कंट्री to fund to provide fund to WHO, that is USA was the largest country, 44 मिलियन या बिलियन के आसपास वो, सॉरी आई थिंक मिलियन है, कंट्रीब्यूट करता था, लिखा हुआ कंट्रीब्यूट मोर देन 400 मिलियन, 15% ऑफ द बजट। सो ये 3 MCQs आपके इस करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं। दैट इज सबफोल्डर नंबर 11। इंटरनेशनल में बस यही रेलिवेंट लगा मुझे आपके इस वीक में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आर्ट एंड कल्चर में फर्स्ट और सेकंड वीक में तो थे, इस वीक में मुझे कुछ भी रेलिवेंट नहीं लगा। सो दैट इज एंट्री 13। ओबिचुरी भी कोई इंपॉर्टेंट ओबिचुरी नहीं मिली मेरे को आपके एग्जाम के लिए। सो लेट्स मूव टू सबफोल्डर नंबर 14। अब दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर phase 2 also, for SEBI and RBI and as well as NABARD. Okay, let's see what is the news. State told to let farmers sell directly. Okay. Now you see it carefully. Center has told state APMC एक्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। आई होप यू नो इट। हमने फर्स्ट वीक की वीडियो, सेकंड वीक ऑफ वीडियोस में इसकी फुल फॉर्म की थी। टेल मी इन द लाइव चैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APMC और इन द कमेंट सेक्शन। This will help farmers sell their produce with the help of farmer produce organization, FPO के फुल फॉर्म में पूछी सकती है। सो दिस सेकंड MCQ which can be asked. So far only Tamil Nadu and Karnataka have agreed to let APMC Act. ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट इसको बोल्ड नहीं करना चाहिए था, गलती से बोल्ड हो गया। पर जस्ट टू टेल यू कि अभी सिर्फ 2 स्टेट्स ने किया है, एंड ई-नैम के क्या फीचर्स है वो सब हम ये में कवर कर चुके हैं। और अभी जब वीडियोस बनाऊंगा, ऑफलाइन में कवर किया अभी मैंने, जब इसकी मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाऊंगा स्कीम्स की ये में, तो मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा। तो ई-नैम के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो 3-4 MCQs कैन कम फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स। So let's move to next current affairs. Labor Ministry to compile data on layoffs and pay cuts. EPFO की फुल फॉर्म, ESI की फुल फॉर्म, इसके हेडक्वार्टर्स का है, दोनों के दोनों हेडक्वार्टर्स जो दिल्ली में है। सो ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब ये इसमें 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 60 मिलियन मीन्स 6 करोड़, 30 मिलियन मीन्स 3 करोड़। ये डाटा नहीं आएगा कि कितने हैं, बहुत कम चांस है इसके डाटा पूछा जाए कि EPFO में कितने सब्सक्राइबर्स हैं। पर स्टिल फॉर इन्फॉर्मेशन 6 करोड़ EPFO में है और 3 करोड़ ESIC में है, दोनों गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं। ओके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट वीक में आ गया था ये। दैट अभी जो सेंटर ने डिसाइड किया कि वो जो EPFO में जैसे 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है आपके इसका, और 12% कंट्रीब्यूशन होता है आपके एम्प्लॉयर का। सो ये दोनों कंट्रीब्यूशन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगा फॉर 3 मंथ्स, जिसकी EPFO और ये से दोनों में 15,000 से कम होनी चाहिए सैलरी। ओके, सो दैट वाज ऑलरेडी अंडरटेकन, स्कीम में हमने कवर किया था वीडियोस में और PDF में ऑलरेडी कवर्ड है। ओके, सो दीज 2-3 current MCQs which can be formed from this news. Now this can come. Government sets 2021 ग्रोथ आउटपुट टारगेट है रिकॉर्ड 298 मिलियन। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं किया गया। सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। टारगेट डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द गवर्नमेंट टारगेट फॉर द क्रॉप आउटपुट फॉर ईयर 2020 and 21. One option can be 298, second option can be 305, 290, 320, likewise 5 ऑप्शन बना देंगे और आपको बताना है दैट इज 298। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये टारगेट आपके नेक्स्ट ईयर के लिए बनाए हैं, ये जो ईयर चल रहा है इसके लिए। तो इस साल जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स होएंगे आपके, स्पेशली अगर मैं इन एग्ज़ाम्स की बात करूँ RBI SEBI NABARD, तो उनमें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, let's see what else in there in this news. Aiming an output of हाँ, अब जितना टारगेट सेट किया उसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग 149.92 खरीफ से आएगा
और 148.4 मिलियन हमारा रबी क्रॉप से आएगा। रबी एक विंटर क्रॉप होती है लाइक वीट, वीट इज ए रबी क्रॉप, और खरीफ हमारी समर क्रॉप होती है लाइक राइस। राइस आप देखोगे समर्स में इसको उगाया जाता है और वीट को सर्दियों में उगाया जाता है। यही टाइम है, अभी वीट की हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है। ओके, टारगेट इज ओवर 2% मोर देन दी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ, ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 31 मार्च तक की। अभी इसका फाइनल स्टैट्स आए नहीं हैं, जब आएंगे तो उसको भी हम करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली ये जो एस्टिमेट है इसके आसपास ही हमारा ये अचीव होगा। ओके, विद द वेदर ऑफिस नॉर्मल गवर्नमेंट एम्स टू प्रोड्यूस। अब देखो पल्सेस का क्या टारगेट है 25.6 मिलियन टन्स, और ऑयल सीड्स का क्या है 36.64 मिलियन टन्स। अब दीज आर दी टारगेट्स, ये टारगेट्स भी आ सकते हैं। क्यों, वाई, इसका एक रीज़न है दैट गवर्नमेंट इज focusing extensively on the pulses and oil seeds, क्योंकि ये दोनों जो कमोडिटीज हैं हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस बट इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, क्योंकि हमारी बहुत ही ज़्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, उसकी वजह से पल्सेस की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब क्योंकि अब इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करने का मतलब इम्पोर्टेंट फॉरेन वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया का है वो इंडिया से बाहर जा रहा है इंपोर्ट्स की वजह से। तो गवर्नमेंट पल्सेस और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को लाइक दे हैव इंक्रीज MSP एंड और काफ़ी इंसेंटिव दे रही है कि फार्मर्स पल्सेस ऑयल सीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और इंडिया की इम्पोर्ट जो हम इतना इम्पोर्ट करें इसका वो कम हो जाए। So that is what the aim of government is. So 25.6 pulses and 36.6 all sets टोटल जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ 298.3, और इस साल का एस्टिमेट अभी रियल फिगर्स आने दो लेकिन 292 के आसपास रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी, तो आप देखोगे इसी न्यूज़ में से आपके 4 से 5 MCQs आराम से बन सकते हैं। दैट हाउ यू हैव टू प्रोसीड। सो दैट इज़ द एंड ऑफ 14th। मिसलेनियस में से भी कोई आप मुझे रेलेवेंट नहीं लगा कि ऊपर 14 सब फोल्डर्स में कवर ना हो पाए और मुझे इसमें डालना पड़े। सो नो करंट अफेयर्स फ्रॉम मिसलेनियस। सो विद दिस वी हैव एंडेड द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल करंट अफेयर्स, दैट इज फ्रॉम 12 to 18 ऑफ अप्रैल। थोड़ा लेट हो गया है वीडियो लाने में, आज 23 है, बट आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली संडे के संडे मैं तीनों वीडियोस में लेके आ पाऊँ। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा हेडेक की वजह से मेरा अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तो थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो बट आई विल ट्राई कि संडे के संडे में 2 या 3 पार्ट्स जो भी, अब देखोगे आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 3 पार्ट्स है। इट्स एक सेपरेट, आप चैनल पे जाओगे एक प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखी प्लीज़ देखो, क्योंकि काफ़ी कंसाइज और रेलेवेंट है, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ओके, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर RBI एंड SEBI फॉर बोथ phase 1 एंड phase 2 एंड फॉर NABARD आल्सो, बट NABARD अभी हो चुका है, अब तो 2021 में ही होगा जो भी होना है। दैट्स वाई दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, इतना काफ़ी है, 10 जगह से मत करना, अपना टाइम वेस्ट करोगे। एनीवेज, फर्स्ट अप्रैल जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल था उसमें 3 वीडियोस मैंने बनाई थी सारी प्लेलिस्ट में। सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे तो 2 वीडियोस में कवर हो गए थे। अब ये थर्ड वीक ऑफ अप्रैल है तो ये अगेन इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो 3 2 3 8 वीडियोस वीकली आपकी बन चुकी है फॉर दी 3 वीक्स। अब नेक्स्ट 4th वीक आएगा आपका, जिसमें हम कवर करेंगे आपके 19 से लेके 25 ऑफ अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। ओके, so that will come soon, and till then wait for that। डेली PDFs आप कीजिए और वीकली PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा या तो सैटरडे को या संडे को, और वीडियोस भी आपकी 4th वीक की आ जाएगी। और इन थर्ड वीक की PDF भी आपको अवेलेबल है। मैंने टेलीग्राम चैनल में कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा उसको पुट फॉरवर्ड कर दी थी। आई हैव पुट देम इन दी टेलीग्राम चैनल, यू कैन गो थ्रू देम थ्रू दी PDFs, but please go through the videos, because from the videos you will be able to get an idea what kind of MCQs will be formed and what is important, what is not important। already these are very very concise, but उसमें से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी होती। ओके, सो वो सब चीज़ें मैं जब मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज अंकुर बधवार। Thank you for staying with me. Please like the video and please comment on the
जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे वो आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट टॉक्स में. इट रियली मोटिवेट्स अस. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करो, इससे आप कोई भी नोटिफिकेशन को वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करो. सो वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ. दैट विल बी, अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 4th वीक के आप करंट अफेयर्स आएंगे, वीकली करंट अफेयर्स वीडियो, और बाकी मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस और क्विज वीडियोस में लेके आऊँगा. क्विज काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास, अब काफ़ी स्टूडेंट सर क्विज बनाओ आप. तो मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के ऊपर क्विज वीडियोस में जल्दी लेके आऊँगा. बहुत जल्दी मैं इस पर वीडियोस बनाऊँगा. सो यू विल गेट अ आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. ऑलरेडी मैं इन पीडीएफ में पहले ही बता रहा हूँ, इस पीडीएफ में भी, इस वीडियो में आपने देखा होगा, मैं हर करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके आरबी ग्रेड बी सेबीओ नबार्ड एग्जाम के लिए. सो थैंक यू. We'll meet in the next video.